वेलकम टू एस्टेक सिविल चैनल। एस्टेक सिविल चैनल पर आप सबको स्वागत है। बेसिकली दिस चैनल इज ए परफेक्ट स्टिमुलेटर फॉर सिविल इंजीनियर्स। अगर ये सब वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को दबा के आप फॉलो कर सकते हैं और अगर कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। We have already discussed about the composition of bricks. Okay, composition of brick art. Then, what are the harmful ingredients that may present in the brick? Then, the steps to manufacture the bricks we have already discussed. Then, the next question is, what are the tests that performed on brick? यानी कि ब्रिक्स का क्वालिटी जानने के लिए आपको कुछ टेस्ट करना पड़ता है। वो सब टेस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स बेस्ट क्वालिटी का ब्रिक पाने के लिए हमको क्या चूज करना पड़ेगा ना। एक नंबर तो अगर टेबल मोल्डेड होगा, 2 नंबर ऑयल बर्न्ट होना चाहिए, 3 नंबर क्रैक फ्री होना चाहिए। ओके, क्रैक अगर होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये श्रिंकेज हुआ है, श्रिंकेज के लिए क्रैक हो जाता है। दो नंबर है कि साइज एंड शेप। साइज एंड शेप के बारे में बोला जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। और कन्वेंशनल साइज, स्टैंडर्ड साइज ये होता है, और कन्वेंशनल साइज actually this conventional size will be changed from state to state, but we may take that 23 into 11.4 into 7.6 यानी कि 230 into 114 into 76 मिलीमीटर में दिखा जाए तो। सो 230 मीन्स inches. If you see the 10 inch means that will be 250, but for plastering we have to give 10 mm, so we will see it as the 230. Then 114, that means if you take 5 inch then it will be 115, 125. Okay, 125. If you take that 5 inch, this portion, if it is 5 inch then 125. But for plastering we have to take, प्लास्टरिंग के लिए हमको 11 मिलीमीटर ज़्यादा लेना पड़ता है। और 76 3 इंच, if you see 3 inch that will be 75, but it is taken as a 76. So it will depend upon what is the region, what is the area in which you are finding the conventional brick size. That will depend upon the area, location. The next is a soundness test. Soundness test किया जाता है कैसे? मेटालिक रिंगिंग साउंड। मेटालिक रिंगिंग साउंड अगर होगा तो 2 ब्रिक को अगर तुम कलिट करोगे, हेडली कलिट करोगे, तो फिर मेटालिक रिंगिंग साउंड अगर पैदा होगा तो फिर the bricks will be okay. So what you have to do? You have to take
two bricks, one brick is here, and another brick is here. Okay, one brick is here and another brick is here. So we have to just call it to each other. Then there will be some metallic ringing sound. Then we may say that the sound, the brick is unsound. Okay. Then structure of the test means structure test is very easy or very simple. The structure test means that should be uniform and homogeneous structure test. Absorption test, that is very much important, that 20% after 24 hours immersion in the water, after 24 hours immersion in the water, the brick should not soak or absorb water more than 20% for the first class brick, and it should not be more than 22% for the second class brick. Okay. And compressive strength, if you see that 5.5 Newton per millimeter square will be the minimum that amount. ये जो strength है ये होना ही चाहिए minimum. Maximum तो बहुत होता है, maximum तो 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, बट मिनिमम you should keep in mind that 5.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना ही चाहिए. और टफनेस टेस्ट देखा जाए तो टफनेस टेस्ट अनब्रेकेबल 1 मीटर हाइट से अगर ड्रॉप किया जाएगा तो फिर दैट विल बी अनब्रेकेबल, मतलब कि जो ब्रिक है वो टूट नहीं जाएगा 1 मीटर हाइट से अगर इसको हम गिराएंगे. टफनेस टेस्ट. हार्डनेस टेस्ट, दैट इज फिंगर नेल टेस्ट. यू हैव टू टेक just you have to scratch it. Okay, you have to scratch it by fingernail. Then if there is no impression, then we may say that this brick is hard enough. And alkaline test, for alkaline test what you have to do, you have to just immerse in water. Okay, after immerse in water, if you see that no sign of efflorescence and stain, then we may say that there is no alkaline. Okay, that's all about the tests. Then some definitions, we have to discuss some definitions. So the definition is, what is stretcher? Stretcher क्या होता है ना, longer face is known as the stretcher. Longer face. Okay. और हेडर किसको कहा जाता है? हेडर शॉर्टर फेस को किया जाता है. हेडर शॉर्टर फेस को कहा जाता है. ठीक है. व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर मीन्स जब हम एक ब्रिक को कट अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक, देन उसको हम कहेंगे कि दैट इज क्लोजर. ओके, क्लोजर मीन्स एक ब्रिक है, इसको हम अलोंग द लेंथ अगर काटेंगे, अलोंग द लेंथ अगर हम काटेंगे तो फिर हमको जो मिलेगा, जो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, दिस टू पोर्शंस आर नोन एज द क्लोजर. ये एक क्लोजर है, ये एक क्लोजर है. दैट इज वन क्लोजर एंड दैट इज ऑल्सो वन क्लोजर. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्लोजर्स आर देयर? दैट इज क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बेवेल्ड क्लोजर एंड meteor closure. Okay, these are the types of the closures. अगर देखा जाए तो क्वीन क्लोजर 2 टाइप्स का होता है. एक है हाफ और एक है क्वार्टर. ठीक है. क्लोजर के बारे में हम बोले कि कट अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक. जब ब्रिक को हम लेंथ वाइज काटेंगे, अलोंग द लेंथ काटेंगे तो फिर हमको क्लोजर मिल जाता है. और क्वीन क्लोजर के बात किया जाए तो एक ब्रिक है, एक ब्रिक को अगर हम
लेंथ वाइज काटते हैं तो क्लोजर कहा जाता है। तो फिर लेंथ बराबर अगर हम काटेंगे, अलोंग द लेंथ अगर काटेंगे, मान लो कि हम काट देते हैं इतना दूर तक हम काटे, ठीक है, इतना दूर तक काट के हम इसको निकाल लेते हैं, इतना दूर तक काट के हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो फिर ये जो पोर्शन मिला ना, दैट इज नोन एज द क्वार्टर, दैट इज नोन एज द क्वार्टर, दैट इज नोन एज द क्वार्टर क्लोजर, क्वार्टर क्वीन क्लोजर, ठीक है। और अगर हम पूरा का पूरा काट लेते हैं, यानी कि अप टू दिस पोर्शन अगर हम पूरा का पूरा हम काट लेते हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे कि हाफ क्वीन क्लोजर। एंड किंग क्लोजर means that is a brick. King closure means that is a brick. What we have to do? We have to take, that is the midpoint of this header, and it is also the midpoint of the stretcher. Okay, midpoint of the stretcher. Then header and stretcher हम काट देते हैं, header and stretcher हम काट के निकाल लेते हैं। तो फिर ये जो पोर्शन रहेगा ना, इसको हम कहेंगे किंग क्लोजर। ओके, और beveled closure means एक कॉर्नर से लेके, तो फिर ये तो हम लेंथ बराबर और अलोंग द लेंथ हम काटने शुरू किया था, इसमें अलोंग द लेंथ हम काटना शुरू किया था, लेकिन क्या हो गया, अलोंग द लेंथ हम काटना शुरू किया था, लेकिन हम क्या किए ना, कॉर्नर टू कॉर्नर काट दिए। और बिवेल्ड में क्या होगा ना, बिवेल्ड में होता है कि ये जो पोर्शन है, यानी कि हम लेंथ बराबर काटना शुरू किया है, हम यहाँ से शुरू किया है, लेंथ बराबर जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बिवेल्ड, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बिवेल्ड, इसको हम बिवेल्ड कहते हैं। दिस पोर्शन अप टू दिस पोर्शन, इसको हम बिवेल्ड कहते हैं, बिवेल्ड क्लोजर। और एक है कि मीटर्ड क्लोजर, व्हाट इज मीटर्ड क्लोजर ना, यहाँ पर हम क्या किए, मिड पॉइंट टू कॉर्नर तक गए। अब हम क्या कर सकते हैं ना, कॉर्नर टू मिड पॉइंट जा सकते हैं, कॉर्नर टू मिड पॉइंट जा सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट टू कॉर्नर हम काटे थे तो ये मिल गया। अगर कॉर्नर टू मिड पॉइंट काटेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कॉर्नर टू मिड पॉइंट काटेंगे तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हम कहेंगे क्या ना, मीटर्ड क्लोजर। ओके, देन व्हाट इज बैट, then bat means cuts along the width of the brick portion. Okay, bat means पहले हम क्या करते थे, पहले ये जो ब्रिक है इसको हम लेंथ वाइज काट रहे थे, ठीक है। वी आर कटिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, लेंथ वाइज काट रहे थे। लेकिन बैट में क्या किया जाएगा ना, बैट में ये जो ब्रिक है इसको हम विड्थ वाइज काटेंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तब जो ब्रिक मिलेगा उसको हम बैट कहेंगे, ठीक है। ये जो बैट है हाफ बैट है, यानी कि एक ब्रिक है, ब्रिक को अगर हम ऐसे काट दिया तो फिर ये हाफ बैट मिल गया, ठीक है। ये एक हाफ बैट मिल गया। 3/4 बैट मीन्स एक ब्रिक है, ब्रिक का हम 3/4 यानी कि ये जो पोर्शन है इसको हम निकाल लेते हैं, और ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज 3/4 बैट। और बिवेल्ड बैट मीन्स ये जो हम विड्थ बराबर काट रहे हैं ना, विड्थ बराबर हम नहीं काटेंगे, ठीक है। विड्थ बराबर हम नहीं काटेंगे, कैसे काटेंगे ना, दिस इज द ब्रिक, सपोज ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक का बिवेल्ड बैट काटना है, तो फिर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर 50% ले लिया और यहाँ पर 75% लिया, ठीक है। दिस बराबर वी विल कट,
So this portion will be separated out. This is the targeted portion. This बराबर will be, ये जो लाइन है इसके बराबर हम काटेंगे, ठीक है, beveled band. Then what is queen? Queen means exterior angle at wall junction, ठीक है, एक जंक्शन आ रहा है, वॉल एक जंक्शन आ रहा है, जैसे कि ये टाइप है, ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ये दोनों वॉल का जंक्शन है। तो फिर एक्सटीरियर एंगल, अगर ये एक वॉल है, ये वॉल है, तो फिर दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस लाइन एंड दिस लाइन। अगर हो सके तो तुम यू कैन टेक इट सेंट्रल लाइन, इधर में गया, ये इधर में चला गया, तो फिर एक्सटीरियर एंगल कौन सी है, you have to extend that line and this angle will be exterior line, exterior angle, that this exterior angle is known as a queen। और ये कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। What are the different types of bonding in brick masonry? This question, number 1 is the English bond. Number 2 is the Flemish bond. Number 3 is the stretcher bond. Number 4 is the header bond. Okay, English bond अगर देखा जाए तो फिर one course will be header, that is the stretcher. Okay, these are the course. One course will be stretcher and one course will be header. One course will be header. But for this purpose you have to remember that you should not use like this, because of the verticality. You have to check also verticality. So for stretcher you have to take like this. This is the header, this is also header in this way. Then again one course will be stretcher. This is the English bond. Okay, English bond is like this. एंड फ्लेमिश बॉन्ड अगर देखा जाए तो फ्लेमिश बॉन्ड में एक हेडर रहता है, एक स्ट्रेचर रहता है और एक हेडर रहता है। देन एक स्ट्रेचर, एक हेडर, देन एक स्ट्रेचर, एक हेडर इन दिस वे। नेक्स्ट कोर्स व्हाट विल बी, एक हेडर, देन एक स्ट्रेचर, देन एक हेडर, then एक stretcher, एक header in this way. That will be next. Okay, Flemish bond is like this. Stretcher bond अगर देखा जाए तो पूरे का पूरे स्ट्रेचर रहता है, ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड में पूरे का पूरे स्ट्रेचर रहता है, स्ट्रेचर बॉन्ड में पूरे का पूरे स्ट्रेचर रहता है। और हेडर बॉन्ड में क्या रहता है ना, पूरे का पूरे हेडर रहता है। हेडर बॉन्ड में पूरे का पूरे हेडर रहता है, ठीक है।
हेडर बंद में पूरा का पूरा हेडर रहता है इन दिस वे। ओके, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा कौन सी है? ये जो फ्लेमिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है सबसे इकोनॉमिकल, फ्लेमिश बॉन्ड है सबसे इकोनॉमिकल, फ्लेमिश बॉन्ड है सबसे इकोनॉमिकल। ओके